students, once again in this today's part third of organic chemistry, some basic principles and techniques. So today we will learn about why carbon forms a large number of organic compounds, why there are so many enormous number of organic compounds. What is the reason behind this? We will also learn the tetravalency of carbon. So let's have a look. So carbon forms large number of organic compounds. The reason behind this lies in the fact that this carbon shows an important property that's called catenation. So we have to learn about what is catenation. So carbon shows catenation. One of the main reason behind that why there are so many large number of organic compounds which are existing in this world. So that is the catenation. So what is catenation? Catenation is the self-linking tendency. It is the self-linking tendency of an element. ये एक वो प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट के पास जिसकी वजह से वो आपस में ही एटम्स सेल्फ लिंक होते हैं. सो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स. सो ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे. सो कैटेनेशन जो है इट इज द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट जो है इसमें एक्चुअली एटम्स होते हैं. एलिमेंट इज दैट प्योर सबस्टेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. तो यहाँ पे एक्चुअली कार्बन के जो एटम्स है इनकी प्रॉपर्टी है कि ये लिंक होते हैं आपस में. इसी को हम सेल्फ लिंकेज कहते हैं. और सेल्फ लिंकेज के बाद ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं. वेदर ये जो लॉन्ग चेन्स है दे कैन बी स्ट्रेट, दे कैन बी ब्रांच. जस्ट लाइक दिस ये स्ट्रेट चेन है. अगर यहाँ पे ऐसे करके चेन बनाएंगे, यहाँ से ब्रांच निकला हुआ है, यहाँ से अनदर कार्बन एटम लिंक हुआ है तो ब्रांच यहाँ से. so that means this is actually the property that carbon atoms have the self-linking tendency. The atoms combine with each other and they form long chains which can be straight chain or which may be branch. Not only that, they form also rings just like this. 3 carbon atoms combine with each other and close the chain. Here chain is open and here chain is closed. So this is a ring formation. So carbon, there can be 4 carbon atoms can link और ये बनाएंगे 4 membered ring. Similarly 5 carbon atoms can link and they can form a 5 membered ring. Just like this 6 membered ring, 7 membered ring. So ये जो property है self linking tendency of the various carbon atoms to form long chains and rings, this property is known as catenation. So now the question arises, carbon forms large number of organic compounds because of this catenation property. क्या ये catenation सिर्फ carbon ही दिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है. बाकी elements जो है periodic table में वो भी catenation दिखाते हैं. But then why carbon forms so many large number of organic compound? The reason is this, that carbon shows maximum or highest catenation. यहाँ पे आप याद रखेंगे कार्बन वाहिद एलिमेंट है. कार्बन shows maximum catenation, सबसे ज्यादा highest value of catenation इसके पास है. Now what is the reason behind this? Why carbon shows maximum catenation? The reason lies in the fact that it has very high bond dissociation energy. So carbon single bond जो होता है उसके पास हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है उसको ब्रेक करने के लिए. तो यहाँ पे आप लिखेंगे very high bond dissociation energy. Very high bond dissociation energy is here in case of carbon. So let's see. अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 1 mole of carbon carbon single bond, it has a bond dissociation energy of
355 किलोजूल पर मोल। सो इतनी एनर्जी हमें लगती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दिस इज हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इसी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड दैट्स वैल्यू ऑफ 355 किलोजूल पर मोल। और अगर हम देखेंगे ये जो कार्बन है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना। कार्बन जो है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 14। कार्बन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी आपस में लिंक होते हैं, सिलिकॉन के एटम्स भी आपस में लिंक हो सकते हैं, ये भी कैटोनेशन दिखाता है। फिर सिलिकॉन के ज्यादा कंपाउंड्स क्यों नहीं, कार्बन के ही ज्यादा क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही ज्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो बनता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज ओनली 200 किलोजूल पर मोल। इसी से समझ में आता है कि कार्बन के एटम्स के पास ये जो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हम देखते हैं दैट वी आर हैविंग 355 kilojule per mole bond dissociation energy, so definitely bond is very much strong, so that's why large number of carbon atoms ये held हो सकते हैं strongly, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं, तभी ये रिंग्स भी पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी हमें ज्यादा लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो maximum catenation. Silicon does not show, but carbon shows because of very high bond dissociation energy. So this is main reason behind that why there are so many large number of organic compounds, nearly 9 million organic compounds. I have already told you that. इसके अलावा कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। So एक जो रीजन मैंने बताया that is the catenation, self linking tendency। अब इसी में आप याद रखेंगे और भी रीजंस है। नेक्स्ट रीजन जो आप यहाँ पे याद रखेंगे जिसकी वजह से कार्बन शोज फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। जैसे हम देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट ऑल्सो फॉर्म्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नॉट ओनली विद द कार्बन एटम्स ही के साथ ये नहीं बनाता बल्कि ऑक्सीजन के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ दैट कार्बन बिकॉज ऑफ इट इज वेरी स्मॉल साइज, यहाँ पे इसकी ये भी टेंडेंसी है दैट इट शोज इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा डेफिनेटली वहां पे सिग्मा होता है एक बॉन्ड, बाकी पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड जो है दैट सिग्मा बॉन्ड, अनदर इज आवर पाई बॉन्ड। और ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा, दो होंगे पाई बॉन्ड्स। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखो कार्बन जो है इसका छोटा साइज है, और यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये अभी हम देखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 2.1 पॉलिंग स्केल पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दिस इज ए डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी वहां पे जो बॉन्ड आपका होगा दैट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी स्ट्रांग होता है, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, ये भी दूसरा रीजन रहेगा। तीसरा रीजन जो है दैट्स आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, देखो कार्बन जो है कार्बन कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी दैट दे शो दिस फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, आई होप कि आपने ये नाम सुना होगा। आइसोमर्स दैट मीन्स द कंपाउंड्स which have same molecular formula
बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, which have same molecular formula but different properties and structure। जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH3, इसको हम कहते हैं N ब्यूटेन। सिमिलरली अगर इसी N ब्यूटेन को मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे CH3 है, ब्रांच निकला हुआ है, ये स्ट्रेट चेन था इसलिए इसको N ब्यूटेन, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, और ये जो है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो मीन्स यहाँ पे ब्रांच एक है, जैसे ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ से एक ब्रांच निकले, आइसोब्यूटेन। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे आइसोमर्स, इनके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आइसोमर्स की वजह से भी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है बहुत ही ज्यादा है ड्यू टू दिस फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, बिकॉज कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम्स उनमें एक ही किस्म के हैं पर अरेंजमेंट डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई कार्बन फॉर्म्स so many large number of organic compounds. Now let's see the tetravalency of carbon. So I hope कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैटनेशन जो है कार्बन सबसे ज्यादा दिखाता है, इसलिए दिखाता है क्योंकि इसके पास सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। Now next we will see the tetravalency of carbon. So you already know carbon is one of the element having atomic number 6. It belongs to the group number 14. Okay, let's see. Tetravalency of carbon. ये जो कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नेक्स्ट में जाएंगे 4, या इसको आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देते हैं 1s2 2s2 2p2। दिस इज फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। सिमिलरली 2s एंड 2p जो है दे बिलोंग टू द सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के ये ऑर्बिटल्स है 2s ऑर्बिटल एंड 2p, तो इनमें टोटल सेकेंड शेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। नाउ in order to complete the octet, in order to become stable, in order to attain the nearest noble gas electronic configuration, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए in order to complete the octet? 4 इलेक्ट्रॉन। अब दो तरीके हैं इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वन इज टू ईदर gain 4 electrons in order to have the octet, right? दूसरा तरीका इसके पास ये है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब इसका डुप्लेट कंप्लीट रहेगा। बट यू विल रिमेंबर हियर दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है उसके लिए। So that is not possible under normal conditions. Then what carbon does? How it completes its octet? By mutual sharing of electron. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कार्बन जो है it completes its octet. It completes its octet by mutual sharing of electrons. ये ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की लॉस नहीं कर सकता है, डिफिकल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो भी डिफिकल्ट है।
तो फिर ये क्या करता है, इट म्यूचुअली शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, सो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. सो लेट्स सी हाउ. जैसे कार्बन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स आवर मीथेन CH4, मीथेन जिसको हम मार्श गैस भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ पे कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली 4 हाइड्रोजन एटम है, तो हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक दिस. तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे with the 4 valence electron of the carbon, so thereby completing its octet. इससे क्लियर ये हुआ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग से डेफिनेटली विच बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. सो कार्बन कितने बॉन्ड फिर बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 बॉन्ड. और कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई वी से कार्बन इज ऑलवेज टेट्राकोवेलेंट. कार्बन इज ऑलवेज टेट्राकोवेलेंट. कार्बन हमेशा टेट्राकोवेलेंट होता है. जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विल रिमेंबर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों के 4 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दैट कार्बन इज ऑलवेज टेट्राकोवेलेंट इन नेचर. पर क्या ये जो मीथेन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये तो लिव्स डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट्स करके मैंने दिखाया था, क्या ये करेक्ट स्ट्रक्चर है इसकी, क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर मीथेन की है? नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये प्लानर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सभी चारों एटम्स प्लान में है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि बॉन्ड एंगल जो है दैट्स 90 डिग्री, पर ऐसा नहीं होता है. विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज, हमें ये पता चलता है दैट कार्बन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. मीथेन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और ये जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज नॉट प्लानर, ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट ऑल द 4 एटम्स जो है दे आर नॉट इन अ सेम प्लान, दे आर इन डिफरेंट प्लान. ठीक है, तो ये एक्चुअली किसने देखा कि मीथेन जो है इसमें नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है. दिस वाज सीन बाय वाट होफ एंड लिबेल. वाट होफ एंड लिबेल जो है इन 1874 इन्होंने देखा कि कार्बन जो है मीथेन में है, मीथेन जो है एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल का मतलब ये हुआ कि कार्बन सेंटर में होता है, 4 बॉन्ड्स आर टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. 4 बॉन्ड्स जो है दे आर टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. So 4 bonds जो है यहाँ पे they are towards the corners of a tetrahedron. Tetrahedron means at an angle of 109 degree 28 minutes. So that means यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ. So the 4 hydrogen atoms they are towards the corners of a tetrahedron. Tetrahedron. Tetrahedron मैंने बता दिया at an angle of 109 degree 28 minutes. तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिली, this is called the tetrahedral structure. Just like this. This is the tetrahedral structure. So right. अब ये स्ट्रक्चर कैसे होती है, 109 डिग्री 28 मिनट्स जो एंगल है, हर एक एंगल है ना, ये एंगल भी दिस दिस दिस, इसको आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक दिस. देखो ऐसे होता है. अगर कार्बन यहाँ पे है, ठीक,
कार्बन सेंटर में है, तो 4 बॉन्ड्स जो है दे आर जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन एटम, 1 इज जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पे ऐसा है दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है ये प्लान में है, 1 इज बिलो द प्लान, अनदर हाइड्रोजन इज अबव द प्लान। ठीक, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको मैं जस्ट लाइक दिस दिखाऊंगा। एक्चुअली ऐसा होता है, कार्बन इज इन द सेंटर, 2 बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर, ये प्लान में होते हैं 2 बॉन्ड्स, तीसरा बॉन्ड जो होगा दैट्स अबव द प्लान, जो हम वेज से दिखाते हैं, वेज बॉन्ड। ये आगे हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, इनकी स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाते हैं। और नेक्स्ट बॉन्ड हम दिखाते हैं डैश से। सो ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे है, कौन कहाँ पे है यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 बॉन्ड्स जो है, ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, सॉलिड लाइन, इट इंडिकेट्स दैट बॉन्ड जो है ये प्लान पे, जस्ट लाइक दिस, इस वक्त है ना प्लान। और ये जो बॉन्ड है, दिस हाइड्रोजन एटम, ये अबव द प्लान है हियर। और ये जो चौथा हाइड्रोजन एटम है जो डैश बॉन्ड से मैंने दिखाया, इसको हम वेज बॉन्ड कहते हैं, ये आगे भी हम देखेंगे वेज, और इसको हम कहते हैं डैश बॉन्ड। वेज बॉन्ड, डैश इंडिकेट्स दैट ये जो हाइड्रोजन एटम है दिस इज बिहाइंड द बोर, ये बोर के पीछे है। ठीक है, दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन एटम इट इज अबव द प्लान, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ए व्यूअर। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन एटम है बिहाइंड द बोर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, जो देख रहा है अवे फ्रॉम दैट। और ये जो 2 बॉन्ड्स है इसी प्लान के ऊपर। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो वाटो और लिबेल जो है इन्होंने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री नहीं है, प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है मीथेन के, बट इट इज टेट्राहेड्रल। और ये जो है वाटो एंड लिबेल, इसके इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से, है ना, हमें ये पता चला कि कौन सा हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है, 2 प्लान पे, 1 इज अबव द प्लान, अनदर इज बिलो द प्लान। इसका इससे अराइज हुआ another branch of organic chemistry that's called the stereochemistry. So it gives birth to stereochemistry. Stereochemistry में हम यही पढ़ते हैं, the arrangement of various atoms or molecules in an organic compound. Atoms कहाँ पे होंगे, space के अंदर, in 3D space है, arrangement of atoms or molecules in 3-dimensional space. जैसे ये 2 प्लान पे है, this is behind the plan, this is above the plan. So this tetrahedral structure of methane, तो ये देखा था इन्होंने Van Hoff and Libel. So this gives rise to stereo, one of the branch of organic chemistry, that is the stereochemistry. So hope that you have understood that carbon is always tetracovalent. That means it forms 4 bonds. और ये जो चारों के 4 bonds होते हैं covalent होते हैं, ठीक है, और tetrahedral structure में at an angle of 109 degree 28 minutes. तो ये स्टेबल होते हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं जिनमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं ये स्टेबल होते हैं। जैसे हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है किसी वक्त वहां पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी, ट्राइगोनल प्लानर होगी। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी ट्राइगोनल प्लानर होगी, जैसे अल्कीन्स, या sp3 होगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे इनके सब अल्काइन्स, तो उनमें लीनियर स्ट्रक्चर होती है और वो अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये जो अल्केन्स हैं जिनमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ये स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे सिंपली, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज टेट्राहेड्रल they are stable, less reactive, just like alkanes, and organic compounds in which there is no tetrahedral structure, जैसे alkenes में trigonal planar structure होती है, जैसे alkynes में linear structure होती है, they are highly reactive, they are not so much stable. So hope that you have understood. Thank you for watching.